MCQs are asking in this particular chapter. It have weightage of 16 to 20 marks. Now, as far as the title is concerned, that sexual reproduction means the formation of new organism by the formation and fusion of gametes. There are two types of gamete, male gamete and female gamete. Both gametes are haploid in nature. When these two gametes get fused together, they will form a resultant diploid cell, and this specialized diploid cell is called as zygote. Now slowly zygote get changes into embryo, and embryo is encloses in the tough seed coat. At the time of germination of the seed, from the embryo, embryonal axis get elongated and a small plant get emerges out from that seed. The process is called as seed germination. So this is the main event in every type of sexual reproduction, but specifically we are studying the sexual reproduction in the angiosperm, that is flowering plant. Now another term of the title is sexual reproduction, especially in flowering plants. Flowering plants is another name of angiosperm. Students, you know that there are so many group of plant developed in this earth: algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, but the most advanced group of plant is angiosperm, which is characterized by the presence of flower. There are so many different characteristics are also there in the angiosperm, that is presence of vessels in the xylem element, presence of double fertilization, formation of fruit. All these characteristics are unique characteristic of the angiosperm, but we are studying about the sexual reproduction. Now when plant is growing, after germination of the seed, initially three vegetative organs are there, that are root, stem and leaf. All these three organs are known as vegetative organs. Okay, vegetative organs. Life cycle of the plant having two different phases: vegetative phase and reproductive phase. So vegetative phase get completed, it is remarkable by the presence of flower. So first of all what will happen, suppose कीजिए कि यहाँ पर वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने आई है, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स अंडरगो सम हार्मोनल एंड structural changes. So these shoot apical meristematic cell are then differentiated into specific cells. That group of cells are called as floral primordia, and then floral primordia get converts into floral bud, and finally bud get open into flower. So these are the sequence of event how shoot apical meristematic cell form the floral bud, and finally it will open into the flower. Flower is one of the most important organ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्लावर में होगा ही होगा, लेकिन जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पर फ्लावर की एप्लीकेशन से आपको वो भी ध्यान में रखनी है कि फ्लावर इज यूज फॉर एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सो मेनी डिफरेंट पर्पसेस. फ्लावर्स आर आल्सो यूज फॉर कन्वेइंग द मैसेजेस. ओके, तो वो एक जनरल पॉइंट है. अब हम स्पेशली स्टडी करने जा रहे हैं कि फ्लावर इस तरह से डेवलप हो गया. शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस and differentiated into floral primordia. Floral primordia form the floral bud. Now, inside the flower, two main reproductive organs are present. This reproductive organ is called as stamen, and group of stamens are collectively known as androecium. At the same time, in this flower, this elongated structure is present. It is called as carpel, and group of carpels is known as gynoecium.
So androecium act as a male reproductive organ and gynoecium act as a female reproductive organ. First of all, we are dealing with androecium. जब ये सबके सब स्टूडेंट्स ग्रुप में रहेंगे तब इनको आप नाम देंगे एंड्रोएशियम, but the single member is called as stamen. This is the structure of stamen. Each stamen is also known as microsporophyll. देखिए बायोलॉजी में अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या मार्क अच्छे स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान दें, टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग समझने की कोशिश करें और उन टर्मिनोलॉजीज के जो अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं उनको भी याद रखना उतना ही जरूरी है। यहां पर जो डायग्राम मैं बोर्ड पे ड्रॉ किया हूं पिंक कलर से, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। देखिए फिल का मतलब होता है लीफ, स्पोर माइक्रो का मतलब होता है मेल स्पोर, एक्चुअली माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। तो कंपैरेटिवली फीमेल गैमेट्स लार्जर साइज के होते हैं और मेल गैमेट स्मॉल साइज के होते हैं, इसीलिए मेल गैमेट्स को माइक्रो नाम दिया जाएगा और फीमेल गैमेट को मेगा नाम दिया जाएगा। तो दिस इज अ लीफ बट इट इज नॉट ऑर्डिनरी foliage leaf, it not perform the function of photosynthesis। ये ऑर्डिनरी लीफ है और ये भी लीफ है, लेकिन दोनों लीफ में डिफरेंस ये है कि ये आपका ऑर्डिनरी लीफ है जिसको आप फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म के लिए प्लांट यूज कर सकता है, और ये भी लीफ है बट दिस लीफ इज अ मॉडिफाइड लीफ एंड दिस लीफ मॉडिफाइड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज स्टेमन। तो दिस इज अ लीफ इन विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। Spore is a haploid cell. Microspore producing leaf is called as microsporophyll. Another name is stamen. Now this stamen consisting on two parts. This elongated part is known as filament, and filament is sterile in nature. Sterile का मतलब होता है कि फिलामेंट में माइक्रोस्पोर्स डेवलप नहीं होंगे। फिलामेंट का काम है कि ऊपर का जो फंक्शनल पार्ट है इसे नाम देते हैं एंथर। तो फिलामेंट का फंक्शन है कि एंथर को हाइट प्रोवाइड करे ताकि ये एंथर फ्लावर से बाहर निकल जाए। एंथर फ्लावर से ऊपर जितना जाएगा उतना पॉलिनेशन के लिए इजी रहेगा, इट इज इजी फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय वाटर, ये सब हम आगे के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो एंथर को हाइट प्रोवाइड करेगा फिलामेंट और एंथर तक न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी कंडक्ट करेगा। ओके, फिलामेंट के नीचे का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल पार्ट, एंड दिस प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कनेक्टेड टू द थैलामस। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपने देखा होगा। सो दिस स्वेलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 नोड्स होती हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सो proximal part is connected to the thalamus, and this much part of the filament is called as distal part, and this distal part is connected to the anther। तो फिलामेंट के 2 एंड होते हैं, नीचे का एंड प्रॉक्सिमल, ऊपर का एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल थैलेमस को कनेक्टेड है, डिस्टल एंथर को कनेक्टेड है। ये हो गया फिलामेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन बिटवीन फिलामेंट एंड एंथर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंथर। फर्स्ट इज dorsifixed anther, second is basifixed, third is adnate, and fourth is versatile anther। अभी देखिए स्टूडेंट, डॉर्सिफिक्स में क्या होता है कि सपोज कीजिए दिस इज बाइलोब्ड एंथर, फिलामेंट एंथर के बैक साइड से अराइज होगी। फिलामेंट इज अराइजेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ एंथर, इट इज कॉल्ड एज डॉर्सिफिक्स। डॉर्सी का मतलब होता है डॉर्सल साइड। ओके, सेकंड इज बेसिफिक्स। लेट अस कंसीडर दिस इज एंथर एंड फिलामेंट इज अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द एंथर। फिलामेंट कहां से अराइज हो गई? बेस से, तो इट इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज बेसिफिक्स एंथर। एडनेट फिक्सेशन में होता यह है कि दोनों लोब्स साइड में हो जाते हैं और कंटिन्यूअस बीच में फिलामेंट रन हो जाती है। इट इज कॉल्ड एज एडनेस फिक्सेशन। ये कैलोट्रोपिस पोरोसेरा में दिखाई देता है। वर्साटाइल, वर्साटाइल में देखिए फिक्सेशन रहेगा डॉर्सिफिक्स, बट एंथर इज फ्री टू रोटेट लाइक अ फैन, एंड दिस वर्साटाइल फिक्सेशन इज ऑफन फाउंड इन grasses or in the members of monocot. Okay, so these are the 4 types on the basis of fixation: distal part of filament and the anther. Now another structure in this stamen is anther. Anther is one of the fertile part. Fertile part यानी इस एंथर में माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो गए, तो हमको एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम देख सकते हैं कि हाउ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड द एंथर। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एंथर बाइलोब्ड होता है। ये एक लोब है एंथर का, ये दूसरा लोब है, इसे आप थीका भी कह सकते हैं, और दोनों थीका के बीच में से लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव पास होता है। दिस लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव डिवाइड बोथ लोब्स ऑफ द एंथर और बोथ थीका ऑफ द एंथर, सो इट इज डाइथिकस एंथर और ऑल्सो कॉल्ड एज बाइलोब्ड एंथर। हर एक लोब में 2 स्फीयर्स होते हैं, hollow spherical bodies. These hollow spherical bodies are called as locule, और more specifically क्योंकि locule word ovary में भी यूज होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहां पर ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसे कहते हैं पोलन सैक। तो एक लोब में बच्चों 2 पोलन सैक है, दोनों लोब्स मिलाकर के 4 पोलन सैक है। सो यू कैन से दैट बाइलोब्ड एंथर is tetralocular. Pollen sac is also called as locule. So 4 locules are present in bilobed anther, therefore bilobed anther is tetralocular. ये जो pollen sac है, this pollen sac is also called as microsporangium. देखिए माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल स्पोर, मेल हैप्लॉइड सेल, और रेंजियम का मतलब होता है बच्चों रहने का घर, माइक्रोस्पोर्स के रहने का घर माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो ऐसे 4 घर है, उनमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हमको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर स्टडी करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ओके, इसको टीएस ऑफ एंथर भी आप कह सकते हैं, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर को हॉरिजेंटली स्लाइड पर रखेंगे और ब्लेड से उसके बारीक बारीक सेक्शंस लेंगे, जो सबसे थिन सेक्शन रहेगा उसे स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाएगा। सो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप internally anther could be divided into 2 parts. The first part is called as anther walls and the second part is called as pollen sac. देखिए पूरे कंप्लीट चैप्टर को याद रखने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप अपने रजिस्टर पर पहले सब टाइटल्स लिखें कि चैप्टर में कौन से सब टाइटल्स हैं, और हर सब टाइटल के मेन टर्म्स आप वहां पे दर्ज कर दे, तो रिवीजन करने में पूरी आसानी जाएगी। 1 या 2 पेज में कंप्लीट चैप्टर आपका बैठ जाएगा और आपको मतलब आसान होगा कि चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीटली याद रखा जाए। ऐसे मेमोरी मैप भी अगर आप बना के रखें तो बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा। सो इंटरनली एंथर कंसिस्टिंग ऑन 2 पार्ट, एंथर वॉल्स एंड पोलन सैक। एंथर वॉल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज epidermis, second endothecium, third is middle layer which is temporary and made up of parenchyma cells. Actually all the layers are parenchymatous but middle layer is only temporary. Fourth and last anther wall is called as tapetum. अब हम इनको स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस इज एपिडर्मिस ऑफ द एंथर। एपिडर्मल सेल्स आर रेक्टेंगुलर सेल and these cells are compactly attached with each other. Just below
the epidermis, some elongated and barrel shaped cells are present. These barrel shaped cells are known as endothecium. The main function of endothecium is dehiscence, and other layers help in the process of dehiscence. Just below the endothecium, another layer of cells are here. These cells are known as middle layers. 3 to 4 layers of the parenchyma cells are there, and these middle layer cells are consumed by endothecium and tapetum at the time of maturity. That's why middle layer is also called as temporary layer. Now just below the middle layer, it is a time to draw the pollen sac, which is a spherical shape structure, this pollen sac. And pollen sac is surrounded by single layer of cells which are called as tapetum cells. अब हम ये सभी layers का एक एक करके डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं. फर्स्ट लेयर का नाम है स्टूडेंट्स इपिडर्मिस, सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. जस्ट बिलो द इपिडर्मिस endothecium, cells of endotheciums are larger, radial and parenchymatous. These endothecium cells are characterized by the presence of fibrous banding और fibrous bands. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा. पूरा डिटेल स्टडी हमको करना है. जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उसमें से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो endothecium having the characteristic fibrous banding. The main function of endothecium is dehiscence of anther. Just below the endothecium, 3 to 4 layers of middle layer cells are present. These middle layers are temporary in nature because they are soon consumed by tapetum layer and endothecium layer. The single layer of cell which surround the pollen sac is known as tapetum. Cell of tapetum having dense cytoplasm, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, and it contain more than one nucleus. More than one nucleus. यानी टेक्निकली आप tapetum cells को पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल भी कह सकते हैं और tapetum सेल को आप पॉलीप्लॉइड सेल भी कह सकते हैं. मोर देन वन न्यूक्लियस मीन्स मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. टेपेटम के दो फंक्शन बच्चों याद रखिए. सबसे पहला फंक्शन होता है टेपेटम का सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर फॉर द माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर यहां पर डेवलप होंगे, ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे. पर माइक्रोस्पोर को फूड चाहिए होता है और फूड सिंथेसाइज होगा टेपेटम सेल्स में और यूबिश बॉडी के थ्रू वो फूड आएगा पोलन सैक में, तो टेपेटम को उनका न्यूट्रिएंट मिल जाएगा. तो नरिशमेंट इज अ मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम. सेकंड फंक्शन ऑफ टेपेटम इज सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ये स्पोरोपोलेनिन उस मटेरियल का नाम है जिससे पोलन ग्रेन का एग्जाइन बना हुआ होता है. ये भी अपन पोलन ग्रेन में स्टडी करेंगे. सो दीज आर द 4 लेयर्स विच फॉर्म द एंथर वॉल्स. आप इसको लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. नाउ एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर्स, तीनों का कलेक्टिव फंक्शन होता है बच्चों प्रोटेक्शन, और तीनों का कलेक्टिव फंक्शन होता है दे हेल्प इन डेहिसेंस. देखिए वर्ड क्या यूज किया है, हेल्प इन डेहिसेंस. लेकिन अगर डेहिसेंस मेन किसका फंक्शन होता है ऐसा अगर पूछा जाए तो स्पेसिफिक आंसर आएगा एंडोथेशियम. बाकी तीनों लेयर हेल्प करती है डेहिसेंस में. टेपेटम के 2 फंक्शंस तो मैं आपको बता ही दिया हूं. पहला फंक्शन है न्यूट्रिशन और दूसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव केमिकल सब्सटेंस. ओके, नाउ अनदर पार्ट इज पोलन सैक. ये जो टेपेटम सेल्स हैं इसके नीचे यहां पर जो फ्री स्पेस है बच्चों, दिस फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज पोलन सैक.
अब देखिए इस पोलन सैक को मैं उधर भी रीड्रॉ कर देता हूं ताकि अपने को स्टडी में आसान रहे. दिस इज सपोज पोलन सैक and this pollen sac is surrounded by tapetum cells. Inside the pollen sac, diploid tissue are present and these diploid tissue are compactly arranged with each other, occupy the central part of the pollen sac. These compactly arranged tissues are known as sporogenous tissue. तो आपको टू द पॉइंट याद ये रखना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली याद ये रखना है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल. दे आर प्रेजेंट इन द पोलन सैक एंड ऑक्यूपाई सेंटर मोस्ट पोजीशन. सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स का ग्रुप है और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू कुछ देर के बाद एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब सेपरेट होंगे. अभी ये जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, दिस इज ऑल अबाउट द यंग एंथर. लेकिन एंथर अब धीरे धीरे मैच्योर होगा तो एंथर का डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन होगा मतलब वाटर लॉस करेगा एंथर, और वाटर लॉस करने में क्या होगा कि मिडिल लेयर्स को कंज्यूम कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक लॉक्यूल में दो पोलन सैक जो ये एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ एंथर, यंग एंथर एंड आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, याद रखना आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर होता है, टेपेटम लेयर कंज्यूम कर दी जाती है, एक लोब में दो पोलन सैक एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं. तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्पोरोजीनियस टिश्यू में बच्चों जितने सेल्स हैं, ऑल दिस सेल्स नाउ गेट डिसोसिएटेड विथ ईच अदर. डिसोसिएटेड मतलब ये सब सेल एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे. अब इस डायग्राम में मैं टपेटम भी ड्रॉ कर देता हूं like this. So all the diploid cells are now get separated from each other. Separation के बाद जो single diploid cell है, this single diploid cell is called as microspore mother cell, or it is also called as pollen mother cell, PMC, that is pollen mother cell. अब इस सेल को हम सेपरेट ले लेते हैं ताकि उसके डिविजन हम स्टडी कर सकें. देखिए, this is suppose diploid pollen mother cell. This pollen mother cell undergo meiosis, and you know that meiosis is a reduction division. Formation of 4 haploid cells from one diploid cell is called as meiosis. meiosis में क्या होता है कि जो diploid cell होता है वो mother cell डिवाइड होने के बाद 4 haploid cell को जन्म देगा. All the 4 haploid cells are living in a common group and this common group is called as tetrad. देखिए चारों सेल 3 डायमेंशनली अरेंज है. सामने 3 सेल्स हैं जो मैं ड्रॉ किया हूं और एक सेल बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है जो ड्रॉ नहीं किया जा सकता लेकिन वो प्रेजेंट होता है. तो आपको थ्योरी में कहा जाएगा कि देयर आर 4 सेल, लेकिन डायग्राम के अंदर बताया जाएगा 3 सेल्स. सो यहां पे मैं लिखूंगा 4 हैप्लॉइड सेल्स इन अ कॉमन ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज टेट्राड. टेट्राड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4, और ये 4 कौन है, माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर. तो माइक्रोस्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड बट माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, एंड दिस कंप्लीट इक्वेशन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस. माइक्रोस्पोरोजिनेसिस. जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम one diploid microspore mother cell by meiosis is called as microsporogenesis. Now these are the microspores, but when these 4 haploid cell get separated out from each other, अब देखिए इनके दरमियान जो कॉमन वाल है, ये वाल को कहा जाता है कैलस वाल. पोलन सेक में कैलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो कैलेज एंजाइम इस वाल को ब्रेक कर देगा तो चारों भी सेल, पीछे का भी आप दिखाई देगा, चारों सेल जो कि हैप्लॉइड है जिनका नाम माइक्रोस्पोर्स हैं,
चारों हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और सेपरेशन के बाद अब इन्हें नाम दिया जाएगा पोलन ग्रेन। तो देखिए बहुत बारीक बारीक से पॉइंट है, लेकिन यही पॉइंट हमको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं। माइक्रोस्पोर टर्म कब यूज करेंगे आप, जब चारों हैप्लॉइड सेल कॉमन टेट्राड ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप से सेपरेट हो गए, तब आप टर्म क्या यूज करेंगे, पोलन ग्रेन। हालांकि ब्रॉड लाइन अगर देखी जाए तो आप यहां पर भी पोलन ग्रेन कह सकते हैं और यहां पे माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, लेकिन बारीकी से स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ग्रुप में माइक्रोस्पोर्स हैं, सेपरेट होने के बाद उनका नाम चेंज हो गया पोलन ग्रेन। अब हम एक पोलन ग्रेन को लेते हैं और उसका ट्रांसफर सेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, जैसा संतरा होता है, मौसम्बी है, वैसा पोलन ग्रेन है। अब उसको हम कट करेंगे ट्रांसवर्सली और उसका ट्रांसफर सेक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, पैलिनो मीन्स पोलन ग्रेन। ओके, तो व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल से बना हुआ है, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस पहले प्रेजेंट होता है, फिर बाद में वो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बनाएगा। यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैप्लॉइड। अब देखिए इसमें क्लियर करने वाला एक पॉइंट हम हमेशा से आप ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड पोलन ग्रेन होता है, दिस यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड पोलन ग्रेन is also called as first cell of male gametophyte. The most important point. Uninucleated unicellular haploid pollen grain is a first cell of male gametophyte. Male gametophyte का ये पहला सेल कहलाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो आपका आंसर रहेगा पोलन ग्रेन विच इज यूनिसेल्यूलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट थिंग, अभी ये जो पोलन ग्रेन है थोड़ा सा इसका हम स्टडी करते हैं। ईच पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers. Both layers are collectively known as स्पोरोडर्म। पोलन ग्रेन 2 लेयर से बना हुआ है, दोनों लेयर्स को मिला के क्या नाम देंगे आप, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म में बच्चों आउटर जो लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड इनर कंटिन्यूअस थिन एंड डेलिकेट लेयर इज कॉल्ड एज एंटाइन। अब दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्साइन्स क्या होती है और एंटाइन क्या होती है। एक्साइन इज थिक डिसकंटिन्यूअस एंड स्पाइनी लेयर। इसमें बारीक बारीक आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द स्पाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव केमिकल सब्सटेंस। ये एनसीईआरटी बुक में भी है, इसीलिए मैं ओरल आपको बोलूंगा, आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। जो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है और उस पर ज्यादा फोकस करना है वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसा कि सेल डिवीजन है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी का रिवीजन ले रहे हैं। तो स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव केमिकल सब्सटेंस। शॉर्टकट में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसा आप लिख सकते हैं, मोस्ट रेजिस्टिव और मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन। अभी तक के कोई एंजाइम ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ है कि जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। लाइपेज लिपिड को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन कोई एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन कैन रेजिस्ट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली
कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है या अल्कली है, उसमें आपने पोलन ग्रेन को इमर्स कर दिया, डिप कर दिया, तो पोलन ग्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी नहीं और स्ट्रॉन्ग अल्कली के अंदर भी नहीं। नेक्स्ट थिंग, एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर में हो गया तो दिस पोलन ग्रेन कैन इजीली सर्वाइव, it can easily withstand up to the extreme temperature. Due to presence of sporopollenin, pollen grain can be preserved as a fossil. Preserved as a fossil. Okay. अब एक पार्ट आपको थोड़ा आगे दिया हुआ है कि जिस तरीके से आप सेमेन का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, सीड बैंक का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आप पोलन ग्रेन को भी 100 साल 200 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए उस पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में आपको रखना पड़ेगा, उस लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड के ऊपर है। आप भी इसी तरह शॉर्टकट में अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइन। अभी देखिए कि एक्साइन के दो पार्ट हैं। वन पार्ट ऑफ एक्साइन इज क्लोजर टू इंटाइन, दिस पार्ट विच इज डिप्रेस्ड क्लोजर टू द इंटाइन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज germ pore, and another part of exine like this spiny part away from, this part is away from intine, this part is called as germ furrow. एक्साइन का पार्ट जो डिप्रेस्ड है और इंटाइन के करीब है उसे कहा जाएगा जर्म पोर, और एक्साइन का वो पार्ट जो बीक शेप है, स्पाइन शेप है लेकिन इंटाइन से दूरी पर है, उसे कहा जाएगा जर्म फरो। अभी देखिए, अगर ये पोलन ग्रेन मोनोकॉट का पोलन ग्रेन होता तो मोनोकॉट पोलन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर होती है, इसीलिए मोनोकॉट के पोलन ग्रेन को यूनिपोरेट पोलन ग्रेन कहा जाएगा। अगर ये पोलन ग्रेन डाइकॉट का पोलन ग्रेन है तो डाइकॉट के पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स होती है, इसीलिए डाइकॉट के पोलन ग्रेन को ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन कहा जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जर्मपोर जो रीजन होता है, एट दिस जर्मपोर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट एट जर्मपोर, और इफ प्रेजेंट, जर्मपोर जो रीजन है क्योंकि वहां से पोलन ट्यूब अराइज होगी। आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर का काम क्या है, या इसी तरह का कुछ और, लेकिन मीनिंग ये है कि जर्मपोर क्यों काम में आएगा। तो जर्मपोर का काम ये है कि इंटाइन उस पार्ट में से इलोंगेट होगी, ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो इमर्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब इज टेकिंग प्लेस थ्रू द जर्मपोर। तो स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन द जर्मपोर। अगर यहां पे स्पोरोपोलिनिन रहता तो पोलन ट्यूब अराइज नहीं हो सकती थी, इसीलिए नेचर का ये बहुत अच्छा रूल है कि यहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, जर्म ट्यूब आसानी से अराइज हो सकती है। अगर स्पोरोपोलिनिन रहा भी तो बहुत ही थिन स्पोरोपोलिनिन रहेगा ताकि वो पोलन ट्यूब को अराइज होने से ना रोक सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइन। अब इंटाइन के कुछ पॉइंट हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ओके, इंटाइन इज थिन एंड डेलिकेट लेयर। थिन यानी कि बहुत बारीक, डेलिकेट यानी कि कमजोर लेयर होती है। इट इज कंटिन्यूअस, जैसा कि एक्साइन डिसकंटिन्यूअस दिखती है आपको, इंटाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इंटाइन इज अ कंटिन्यूअस, एंड दिस इज इंटाइन इज मेड अप ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंसेस। इंटाइन लेयर में 2 केमिकल मिक्स होते हैं, एक होता है सेल्यूलोस और दूसरा होता है पेक्टिन। दोनों को मिलाकर आप नाम दे सकते हैं पेक्टो सेल्यूलोज। पेक्टो सेल्यूलोज मतलब पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। नाउ जस्ट बिलो, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो इंटाइन है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जी नहीं, ये दोनों तो एंथर पोलन ग्रेन की वॉल्स हैं।
अब इंटाइन के अंदर फिर से कंटिन्यूअस फ्लेक्सिबल बाउंड्री रहेगी और इस कंटिन्यूअस फ्लेक्सिबल बाउंड्री को कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंटाइन के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विथ सिंगल न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को डिवाइड होने की बहुत गड़बड़ है, जल्दबाजी है, इसीलिए इस न्यूक्लियस को अपन नाम देंगे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो देखिए मैं एक बार कंपोनेंट रिवाइज कर देता हूं पोलन ग्रेन के। पोलन ग्रेन स्फेरिकल होता है। पोलन ग्रेन के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट स्पेसिस में अलग अलग डिजाइन्स होती हैं और डिफरेंट साइज भी होती है। जैसे केस स्टडी आपको दिया हुआ है, पोलन ग्रेन ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज। चाइना रोज का एंथर अगर मैच्योर हो गया, आपने उसको अपने हाथ पे फ्लावर को झटके तो आपको येलो कलर की डस्ट दिखाई देगी, येलो कलर का पाउडर आपके हाथ पे गिर जाएगा। वो येलो पाउडर एक्चुअली पोलन ग्रेन से। एक पोलन सैक में बच्चों हजारों पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म इन वन पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर मियोसिस के थ्रू पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ। आउटर मोस्ट एक्साइन, एक्साइन के नीचे इंटाइन, इंटाइन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किसको किया? डेंस साइटोप्लाज्म को। डेंस साइटोप्लाज्म के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, पोलन ग्रेन का एवरेज डायमीटर होता है 25 टू 50 माइक्रोन। ये पॉइंट भी बुक में दिया है और आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज द साइज ऑफ पोलन ग्रेन और एवरेज डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, देखिए अब क्या होगा कि पोलन ग्रेन का जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि उस न्यूक्लियस को डिवाइड होने की बहुत जल्दबाजी है, तो अब वो न्यूक्लियस अनइक्वली डिवाइड होगा। बच्चों याद रखिए, अनइक्वली। आप जो डायग्राम्स दी हुई एनसीईआरटी में, उसमें भी देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर को अनइक्वली कहा गया या ऐसे रिलेटेड कोई वर्ड दिया गया। अनइक्वल डिवाइड होने का रिजल्ट ये निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि सेम साइटोप्लाज्म में दो पार्ट हो जाएंगे। दिस इज सपोज एक्साइन, more or less similar to previous diagram. This is intine, which encloses dense cytoplasm and plasma membrane. But now this plasma membrane having two nuclei, one nucleus occupy the larger space. This is first nucleus and this is spindle shaped second nucleus. देखिए दोनों न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन है, लाइक दिस। ओके, सो टू सेल्स आर फॉर्म बाय अनइक्वल माइटोसिस। डिवीजन कौन सा हुआ बच्चों? माइटोसिस। मियोसिस सिर्फ मदर सेल का होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल। इसको आप मियोसाइट भी कह सकते हैं, जिसका मियोसिस होता है। बाकी सब अब क्या हो गया? माइटोसिस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस two unequal cells are formed. One is larger cell, another is smaller cell. So this cell is larger in size and another cell is smaller in size. Okay, वो दिखाई दे रहे हैं कि एक स्मॉलर है भाई और एक लार्जर है। स्मॉल सेल लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्जर सेल। जो छोटा सेल है वो बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्विम कर सकता है, तैर सकता है, एंड सेपरेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लार्जर सेल है, दिस लार्जर सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। डिफरेंसेस याद रखिए। वेजिटेटिव सेल विच इज लार्जर इन साइज कंटेन abundant reserve food material and it also contain the vacuole.
food material plus vacuole are present in the vegetative cell. But in small generative cell, no food material is present and neither there is any type of vacuole, but it is a spindle shaped cell and spindle shaped nucleus. This is larger cell and this larger nucleus is irregular in shape. वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है, जनरेटिव सेल में न्यूक्लियस का शेप स्पिंडल होता है. वेजिटेटिव सेल में अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, वैक्यूल प्रेजेंट है, बट जनरेटिव सेल में सिर्फ हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ना रिजर्व फूड मटेरियल है, ना वैक्यूल है और ना कोई ऑयल ड्रॉपलेट प्रेजेंट है. ओके, अब पोलन सैक में ये बाइसेल्ड पोलन ग्रेन फॉर्म हो चुका है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एंथर. ओके, इस एंथर में यहां पर ये बाइसेल्ड पोलन ग्रेन फॉर्म हो गए हैं. एज सून एज बाइसेल्ड पोलन ग्रेन फॉर्म इनसाइड द पोलन सैक, एंथर इज सपोज टू बी मैच्योर्ड. अब एंथर क्या हो गया? मैच्योर्ड. और जब एंथर मैच्योर होता है तो इस एंथर के अंदर डिहिसेंस होगा, एंथर बिकम ओपन एंड ऑल द पोलन ग्रेन गेट रिलीज आउट. 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें बाइसेल्ड पोलन ग्रेन एंथर से बाहर रिलीज होता है. ये एंथर मान लो ओपन हो गया, डिहिसेंस हो गया और पोलन ग्रेन रिलीज हो गया. पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव. तो इन 60% एंजियोस्पर्म बाइसेल्ड pollen grain get released out from the anther. What about 40% species? In 40% species, before releasing the pollen grain from the anther, generative cell again divide by mitosis and produces 2 male gamete. देखिए, ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का. दिस इज वेजिटेटिव सेल. और यहां पर जो न्यूक्लियस है, मैं 40% के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब 40% स्पेसीज, माइनॉरिटी ऑफ स्पेसीज. द जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट. This is the pollen grain which release in 40% angiosperm, and this pollen grain release out from the anther in majority of the angiosperm. Okay, देख लीजिए आप इसको एक मर्तबा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड. एक बार मैं एक ही मिनट के अंदर कंप्लीटली रिवाइज कर दूं. हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी किया. फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिंगल ऑर्गन को माइक्रोस्पोरोफिल यानी स्टेमन कहते हैं. फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट. एंथर फर्टाइल है, बाइलोब्ड, डायथिकस, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव इज पासिंग थ्रू द 2 थीका. Each theca having 2 pollen sac. Internal structure of anther. Anther wall, pollen sac. Epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. सबके functions. Pollen sac, sporogenous tissue, compactly arranged at the center, then separate or dissociate with each other to form spore mother, microspore mother cell or pollen mother cell. Each diploid pollen mother cell undergo meiosis and produces 4 haploid microspore arranged in a common tetrad. The process is called as microsporogenesis. Callose wall, the connecting wall get dissociate. All the 4 haploid cell now get separated from each other. After separation, each haploid cell is called as pollen grain. This is transverse section of pollen grain. After this, it will divide by mitosis and convert into 2-celled stage. This is called as bicelled pollen grain. देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है इसे कहा जाएगा बाइसेल्ड पोलन ग्रेन. ओके, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमेटोफाइट? यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड पोलन ग्रेन. ओके, नाउ दिस बाइसेल्ड पोलन ग्रेन इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. कई मर्तबा इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, टेस्ट में भी दिया हूं मैंने और आने के चांसेस है. बाइसेल्ड पोलन ग्रेन इज पार्शियली डेवलप्ड
This is a symbol of male. Partially developed male gametophyte. Okay, bi-celled pollen grain is partially developed male gametophyte. Now it is a time to discuss about female reproductive organ. In the flower, the female reproductive organ is called as, अगर मेल को माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे तो फीमेल को ऑब्वियसली क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल. एंड अनदर नेम ऑफ मेगा स्पोरोफिल इज कार्पेल. कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल. देखिए बच्चों, कई मर्तबा एक फ्लावर में एक ही कार्पेल होता है तो इसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर. मोनो मतलब एक. कई मर्तबा कुछ स्पेसीज में एक ही फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, बहुत सारे. मैनी, मैनी को क्या कहते हैं, पॉली. तो ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारे कार्पेल्स हैं उसे कहेंगे पॉलीकार्पेलरी फ्लावर. अब पॉलीकार्पेलरी में दो कंडीशंस है. देखिए, अगर आप इसकी नोट्स बना रहे तो इस तरीके से कार्पेल, if one carpel is present then flower is called as monocarpellary flower. Okay, और अगर many carpels हैं तब flower is called as polycarpellary flower. अब polycarpellary में बच्चों दो केसेस हैं. Polycarpellary, if all the carpels are united with each other or all the carpels are fused to each other, then it is called as polycarpellary syncarpous flower. आपको डायग्राम बहुत अच्छे से स्टडी करना है बुक्स में, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. इफ कार्पेल्स आर मैनी एंड ऑल द कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, देन फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस फ्लावर. ओके, सुपेरियर ओवरी, इंफेरियर ओवरी, हाफ इंफेरियर, हाफ सुपेरियर, ये सब हम मॉर्फोलॉजी में और एक मर्तबा स्टडी करेंगे रिवीजन के टाइम पर. तो आप इतने बातों को ध्यान में रखिए. नाउ सिंगल कार्पेल I am going to draw over here. This is the structure of carpel. Each carpel consisting on three parts. Uppermost part is called as stigma, and stigma act as a landing platform of the pollen grain. Pollen grain pollination perform करके जब आएगा तो land कहाँ पर होगा, स्टिग्मा के ऊपर. तो स्टिग्मा is a landing platform of the pollen grain. The long hollow tube, inside the tube tissues are maybe present. This long tube is called as style, and basal bulge part of the carpel is called as ovary. देखिए, ओवरी के अंदर जो स्पेस है, the space inside the ovary is called as locule. ओके, आपने मॉर्फोलॉजी में देखा होगा यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, पॉलीलॉक्यूलर. तो लॉक्यूल इज अ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द ओवरी. अब इस ओवरी में इस तरह के रैकेट शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल. एंड ओव्यूल, ये जो अंदर के स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल. ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. देखिए, फिर से टर्म क्या आ गया आपके पास में, रेंजियम. रेंजियम का मतलब होता है घर, रहने का घर. किसके रहने का घर, मेगास्पोर. मेगा मतलब फीमेल, स्पोर मतलब हैप्लॉइड सेल. तो फीमेल हैप्लॉइड सेल किसके अंदर रहेगा, अपने घर में, और घर का नाम क्या रहेगा, मेगास्पोरेंजियम. तो ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल का स्ट्रक्चर और डायग्राम मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बट द मोस्ट कॉमन ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म इज एनाट्रोपस ओव्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल. उस इन्वर्टेड ओव्यूल में क्या होता है कि ये मान लीजिए फ्यूनिकल है, बॉडी रोटेट हो जाती है 90 डिग्री में इस तरह से, और यहां पर प्रेजेंट है कॉमन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. ओके, तो ठीक है, यहीं से सपोज कर लीजिए कि दिस इज माइक्रोपाइल एंड बेस ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज चलाजा, एंड दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल इज पैरेलल टू द चलाजा एंड माइक्रोपाइल. देखिए, इधर साइड फ्यूनिकल है और इधर चलाजा एंड माइक्रोपाइल है. चलाजा माइक्रोपाइल आर पैरेलल टू फ्यूनिकल. इट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल.
and this anatropous ovule is also called as inverted ovule and it is most common type of ovule in the angiosperm. लेकिन डायग्राम को समझने के लिए हमको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल स्टडी करना पड़ेगा. सो वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. Orthotropous ovule is also called as erect ovule or it is also called as upright ovule. Let us consider this is ovary wall. Okay. From the ovary wall, ovulus arises. This is point of attachment between ovule and ovary wall. This point of attachment is called as placenta. Okay. A stalk of ovule is called as funicle. Now body of ovule, this is body of ovule, ये completely body है. The point of attachment or junction between funicle and body is called as hilum. तो funicle body पर भी connect होता है, funicle ovary wall पर भी connected है. Placenta, funicle, hilum. Hilum is a junction between funicle and body of the ovule. अभी देखिए जो बॉडी है इसमें बहुत सारे डिप्लॉइड टिश्यूज है. These diploid tissues store the reserve food material. इन डिप्लॉइड टिश्यू के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. All the diploid tissues are collectively known as nucellus. Okay, nucellus के कुछ सेल या हम एक सेल देखते हैं. nucellus का एक आधा सेल ऐसा होता है जो एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगा. सो लेट अस कंसीडर हियर इज द एम्ब्रियो सैक. ओके, सो दिस इज एम्ब्रियो सैक. दिस एम्ब्रियो सैक is also called as female gametophyte, which is characterized by the presence of 7 cells and 8 nuclei. 7 cells के लोकेशंस मैं आपको बता दूं. 3 सेल ऊपर होते हैं, 3 सेल नीचे. तो इसकी डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अभी वक्त भी बहुत हो चुका है और आप जानते हैं कि चैप्टर काफी बड़ा है. एक लेक्चर में जितना पॉसिबल हो उतना फास्ट हमने रिवाइज करे. अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पॉलिनेशन जैसा बड़ा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए. डबल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और अपने क्या है उसमें नेक्स्ट टॉपिक सीड है, फ्रूट्स है, उसके बाद में एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनी है. तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 1 घंटे के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर हम सेल